So if there is one question type in the verbal reasoning section of the GMAT that bothers a lot of people and gets asked very frequently, then that question type has to be a question type which is common to both critical reasoning and reading comprehension. It is called identify the inference, and in this particular session of our new series called GMAT Power Play, you and I are going to work on some inference questions. So welcome to GMAT by Physics Wala. My name is Vikrant. I'm your personal coach for all things related to the verbal and the verbal section of the GMAT, of course. And let's go ahead and work on inference question type. So what we'll do is that we'll actually work on it live. I will show you a question on screen. You will pause the video, answer the question, and then join me for a discussion. So चलिए शुरू करते हैं. Identify the inference, लेकिन hey, उससे पहले थोड़ा बताना दूं क्या होता है ना. So you'd find a lot of questions that ask you about which of the following can be inferred. If the information given above is true, then which of the following must also be true. Those questions are basically identify the inference questions. So what exactly is an inference? Well, loosely put, I can say that an inference is basically a conclusion, right? The only addition that I'm making here is that it is an unstated conclusion. So it is a conclusion, but it is something which is not stated in the information given to you by that particular question. So typically what we do in these questions is that we start with the question stem. The moment we identify it as an inference question, we go to the paragraph, treat whatever is given to us there as a piece of information, and then we come to the options and start evaluating whether it can be termed true on the basis of the information given above or not, right? So let's go ahead and dive into our questions now. So here is the first one. I'd urge you to pause the video here, answer the question, come back, and then we will go on and discuss it. Start. Alright, so I hope that you have answered the question. In case you need a little longer, make sure that you do stop and answer it. That will allow you to get the best out of this particular question type. तो शुरू करते हैं, आइए देखें. So देखिए, the adoption of this policy would be most likely to decrease employees' productivity if the employees' job functions required them to do which of the following. तो देखो यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि यार कोई एक पॉलिसी है, ठीक है, वो पॉलिसी इस पैराग्राफ में दी होगी. अगर ये पॉलिसी हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इनमें से कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके बाद हम ये बोल पाए कि यार एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, right? So it is one of those questions where the question stem is not very explicit about the job, but वो context में हमें पता है यार critical reasoning में हर तरह के सवाल आते हैं, तो उस context में हम इसको देख करके फिर decide करते हैं कि यार क्या करना है. तो यहाँ पे adoption of the policy के बाद ये plus the option मिलकर के true हो जाना चाहिए. So a part of the conclusion is given to you. You need to add another part, make it complete, and then go ahead and move on. तो चलिए देखें. So a company is considering changing its policy concerning daily working hours. Currently this company requires all employees to arrive at work at 8 AM. तो भाई रोज सुबह 8 बजे employees को ऑफिस पहुंचना होता है. The proposed policy would permit each employee to decide when to arrive from as early as 6 to as late as 11. तो अब वो बोल रहे हैं यार 8 बजे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम ना बस 6 से 11 के बीच कभी भी आ जाओ, तुम पे है. अब हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट हुई तो इनमें से कौन सी चीज है जो एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देगी. हाँ, तो अब देखते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट विद ए. If the employee's job functions required them to work without interruption from other employees. तो इन एम्प्लॉइज का वर्क शेड्यूल ऐसा है कि उनको बिना दूसरे लोगों की इंटरप्शन के काम करना उनके लिए जरूरी है. तो अच्छा, अब अगर ये वर्क आवर्स स्टैगर्ड हो जाएंगे तो इंटरप्शन कम होगी कि बढ़ेगी? पक्का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन
कम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सब लोग अगर 8 बजे आ रहे हैं तो सारे के सारे एम्प्लॉइज सेम ही टाइम पे ऑफिस में है। स्टैगर्ड टाइमिंग से द नंबर ऑफ पीपल इन द ऑफिस रिड्यूसेस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और उसकी वजह से इंटरप्शन की प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर इनका जॉब फंक्शन बोलता है कि यार बिना इंटरप्शन के अच्छा काम होता है, तो स्टैगर्ड टाइम इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। हमें क्या प्रूव करना है? कोई ऐसी चीज जो प्रोडक्टिविटी घटाए, लाइकली टू डिक्रीज। तो यार ए तो एकदम ऑपोजिट चीज ही हो गई, हटा देते हैं। आगे देखें, एम्प्लॉइज जॉब फंक्शंस रिक्वायर देम टू कंसल्ट एटलीस्ट वंस अ डे विद एम्प्लॉइज फ्रॉम अदर कंपनीज। ओके, तो इनको दिन में कम से कम एक बार दूसरी कंपनी के एम्प्लॉइज से बात करनी है। तो ये इनके स्टैगर्ड टाइम का दूसरे कंपनी के एम्प्लॉइज से बात करने पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? दिन में एक बार, कम से कम एक बार, वेरी अनलाइकली, है ना। आप 6 बजे आए, 11 बजे आए, हमें दूसरी कंपनीज का टाइम पता नहीं है, बट मान लेते हैं दूसरी कंपनी के एम्प्लॉइज 8 बजे आते हैं, तो जो 6 बजे आ रहा है वो अभी भी बात कर सकता है। जो 10 बजे आ रहा है यार, वो 8 के बाद ऐसा थोड़ी है कि वो 8 बजे आकर के 10 बजे तक निकल जाएंगे, है ना। दैट्स अ वेरी रीजनेबल टू अज्यूम कि वो लोग अपना रेगुलर टिपिकल ऑफिस आवर्स, अच्छा अगर बहुत जनरस कंपनी हुई तो 6 घंटा तो लगाएगा ऑफिस में, तो ये कम से कम भी 2 बजे तक तो है ही ना। So no matter when you turn up between these slots, you'll always be able to coordinate with the team, with the people from in the other organization multiple times if you want. तो at least once a day तो हो ही जाएगा. So it'll have no impact on their productivity. हटा देते हैं आगे. Their job function requires them to submit their work for a supervisor, the eventual approval. Staggered time से कोई लेना देना नहीं. आप जब भी आए अपना काम करें, सबमिट कर दें. D, their job function requires them to interact frequently with each other throughout the entire work day. अच्छा, अब देखो, इनका काम ऐसा है कि इनको बाकी लोगों से मल्टीपल बार बात करनी पड़ती है थ्रू आउट द डे। अब इसमें सोचो, एक बंदा 6 बजे आया, एक 11 बजे आया, लेट्स जस्ट पिक अप दीज टू एक्सट्रीम्स। अब ये 6 बजे वाला जो है, इसे 11 बजे वाले बंदे से बात करने की जरूरत है, राइट? और वो भी थ्रू आउट द इंटायर वर्क डे, लेकिन 6 से लेके 11 के बीच ये इससे बात ही नहीं कर पाएगा। तो इसकी प्रोडक्टिविटी इस बंदे के ना होने की वजह से कम होगी। ऐसे 11 बजे वाला बंदा, इफ वी अज्यूम द एम्प्लॉय दैट टर्न्स अप एट 11, वो रुकेगा भी तो एक्स्ट्रा देर, पर उस टाइम पे ये नहीं होगा। तो बीच में वो 5 घंटे ऐसे होंगे जहां पे दोनों लोग आपस में, दोनों के लिए ऐसे घंटे आएंगे जिसमें आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर ही नहीं पाएंगे, विच विल डेफिनेटली रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी. Then let's look at the fifth one. The employee's job function required them to undertake projects that take several days to complete. Irrelevant. आप जब भी आए कभी भी, आपको लेटर से 7 दिन लगने हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, तो आप 6 बजे आके काम शुरू करें कि 11 बजे, इट इज irrelevant. So हटा दें. So the only option that goes on to satisfy this condition for us is option D. So that is the one that you and I should go ahead and choose as our answer. So D it is for question number 1. आइए अगला सवाल देखते हैं. Here it is on your screen. Once again, pause the video. Once you've answered it, come back and hit play, and you'd once again find me here. All right, so I hope you have answered it. Let us see if your answer and my answer happens to be the same. So which of the following can be logically concluded from the passage above? तो बहुत सीधा सीधा दिख रहा है यार, identify the inference question है. चलिए देखें. So a computer equipped with signature recognition software which restricts access to a computer to those people whose signatures are on file identifies a person's signature by analyzing not only the form of the signature but also such characteristics as pen pressure and signing speed. तो ओके, अब भाई एक कंप्यूटर है, उसको एक्सेस करने के लिए हमने बहुत सारे मूवीज में देखा है ना, हाँ, कि बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपको तंब लगाना है, आपके रेटिना को स्कैन किया जाएगा, फेस को स्कैन किया जाएगा, फिर एक्सेस मिलेगी. तो यहाँ पे एक्सेस का तरीका क्या है? साइन. भाई आप साइन कीजिए. अगर आपके साइन मैच हो जाएंगे विद द वंस विच आर अप्रूव्ड for the use of the computer which are on file,
तो आप यार यूज कर सकते हैं उस कंप्यूटर को, वरना नहीं। लेकिन इसमें ये सिग्नेचर की जब मैचिंग करता है तो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो ये देख रहा है कि सिग्नेचर करते टाइम पेन का जो प्रेशर था वो मैच हो रहा है कि नहीं, जिस स्पीड पे सिग्नेचर किया गया वो मैच हो रही है कि नहीं। कई बार होता है ना, किसी और के सिग्नेचर हमें फॉर्ज करने, हम देख के धीरे धीरे करेंगे तो द फॉर्म में मैच बट द स्पीड विल डिफर। तो ये मल्टीपल चीजें कर रहा है जिससे सिक्योर बने। सो इवन द मोस्ट अडेप्ट, अभी अडेप्ट का मतलब होता है मोस्ट स्किलफुल। सो इवन द मोस्ट स्किलफुल फॉर्जर, है ना, कोई जो फॉर्जरीज करता हो, जो दूसरे लोगों के सिग्नेचर्स को कॉपी करता हो, बहुत स्किलफुल फॉर्जर भी होगा तो भी ही कैन नॉट डुप्लीकेट ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रोग्राम एनालाइजेस। यानी कि ये वो फॉर्म, प्रेशर और स्पीड, तीनों चीजें तो कॉपी नहीं ही कर पाएगा, राइट? तो अब हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली कंक्लूडेड। लेट्स स्टार्ट विद ए। The time it takes to record and analyze a signature makes the software impractical for everyday use. ये on the basis of the information supplied by the paragraph, can I say कि यार ये तो can't से है, cannot be determined है। ये तीन चीजें देखी जाती हैं, वो तीन चीजें जो हैं वो उनको मैच करना प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकल है हमें नहीं पता यार, वो तो इस बेसिस पे तो नहीं बोल सकते हम। सो ये गोज आउट ऑफ स्कोप ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। हाउ अबाउट बी? Computers equipped with the software will soon be installed in most banks. पता नहीं, इसमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। सो आई थिंक जिसको भी वो एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए होगी वो इसे यूज कर सकता है। वो बैंक होंगे, के इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, के आई डोंट नो गवर्नमेंट ऑफिसेज दैट डील विद सेंसिटिव मैटर्स होंगे, यार कह नहीं सकते। Nobody can gain access to a computer equipped with the software solely by virtue of skill at forging signatures. तो ये बोल रहा है यार, अगर आपका स्किल ये है कि आप सिग्नेचर्स फॉर्ज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, हाँ, तो अगर सिर्फ यही स्किल है आपके पास तो आप यू कैन नॉट गेन एक्सेस टू दीज कंप्यूटर्स। ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी फॉर्जरर ये तीनों चीजें तो कॉपी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए फॉर्जरी तो नहीं हो सकती यहां पे। सिग्नेचर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हैज टेकन मेनी इयर्स टू डेवलप एंड परफेक्ट। We don't know anything about the timeline of the development of this particular software. In many cases, even authorized users are denied legitimate access to computers equipped with the software. Once again, हमें नहीं पता कैसा होता है कि नहीं होता है। हो सकता है होता हो भाई। हमारी खुद की स्पीड भी तो चेंज हो जाती है ना कई बार साइन करने की। खुद भी तो हम एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर पाते अपने सिग्नेचर्स हर बार, तो हो सकता है, बट देन वी डोंट नो, वी डोंट हैव इनफ डेटा टू गो बाय। तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर है हमारे पास दैट कैन बी लेबल्ड और टर्म्ड ट्रू, दैट इज ऑप्शन सी। तो दैट इज द वन दैट वील गो अहेड एंड मार्क एज आवर answer here to this particular question. So here is the next one for you. Go ahead, pause the video and then we'll talk. Okay, so if we are ready, then let us start. कर लिया आपने? देखना शुरू किया जाए। So which of the following conclusions is best supported by the statement above? तो भाई स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसे देखेंगे आप और मैं, और उसको देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स बिगिन। सो इफ देयर इज एन ऑयल सप्लाई डिसरप्शन रिजल्टिंग इन हायर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, domestic oil prices in open market countries such as the US will rise as well whether such countries import all or none of their oil. तो हमें सिंपल सी चीज बताइए यार। देखो, अब I live in India. India happens to be an importer of oil. तो अब अगर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में प्राइसेस बढ़े तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी बढ़ेंगे। हालांकि उतना ऑब्वियस है नहीं, हमारे यहाँ वो जो टैक्सेशन रिलेटेड शरारतें होती हैं उनकी वजह से, बट कह लें कि अच्छा अपने यहाँ तो फिर भी लॉजिकल है। अब यार एक कंट्री है जो ऑयल इंपोर्ट करती नहीं है, वो सारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करती है, तो लॉजिकली यही होना चाहिए कि यार इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हो प्राइसेस का, उससे उनको क्या, वो तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर ये बोल रहा है ऐसा नहीं है यार। अगर आप इंपोर्ट नहीं भी कर रहे, लेट्स से इन अ कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, तो भी वहां पर प्राइसेस
नहीं बढ़ेंगे। हाँ, तो बोल रहा है वो इंपोर्ट करती हो चाहे ना करती हो, ये बोल रहा है कि यार वो आप इंपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं उससे प्राइसेस का रिलेशन ही नहीं है। इवन इफ यू डू नॉट इंपोर्ट तब भी आपके यहां पे प्राइसेस बढ़ेंगे अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़े तो चलिए देखें। A, domestic producers of oil in open market countries are excluded from the international oil market when there is a disruption in the international oil supply. Can't say. In fact, अगर मुझे लेबल लगाना भी है तो मैं यार यही बोलूंगा कि it is probably false. कि अगर ये एक्सक्लूड होंगे तो फिर तो प्राइस बढ़ने नहीं चाहिए थे ना। तो भाई मैं अगर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में अपना ऑयल बेच ही नहीं सकता हूं, इफ आई एम एक्सक्लूडेड, तो मेरा जो प्राइस है वो फिर मैं डोमेस्टिकली बेचूंगा अपने कंज्यूमर्स को जिस भी प्राइस पे बेचना है। तो अब ये एक्सक्लूड किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं हमें पता नहीं यार। अगर किए जाते होते तो शायद यहां प्राइसेस बढ़ते ही नहीं। बी, international oil supply disruptions have little if any effect on the price of domestic oil as long as an open market country has domestic supplies capable of meeting domestic demands. पर यहां पे तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आप इंपोर्ट नहीं भी करते, यानी कि which is in other words means that you are capable of meeting all your domestic demands on your own, तो भी आपके यहाँ प्राइसेस बढ़ेंगे। तो दिस बेसिकली गोज ऑन टू कॉन्ट्राडिक्ट द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, सो वी कैन लेबल इट एज false. C, the oil market in an open market country is actually part of the international oil market, even if most of that country's domestic oil is usually sold to consumers within its borders. अच्छा, this does logically follow. ये बोल रहा है कि आपकी जो डोमेस्टिक ऑयल मार्केट है इट इज ऑल्सो एक्चुअली पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट, यानी कि आप अभी की इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है, सारे कंट्रीज की ऑयल मार्केट इसी का पार्ट है। तो अगर यहां प्राइसेस बढ़े तो इन इंडिविजुअल जगहों पे भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और देखने में लग रहा है कि ठीक है डोमेस्टिक है, बट इन रियलिटी दे आर ऑल क्लूड इन। इनफैक्ट हियर इज एन इंटरेस्टिंग piece of trivia for you. I want you to go ahead and research how prices of oil are determined in India. या इनफैक्ट मैं रिटेल प्राइसेस की भी बात नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि अगर इंडिया में कोई रिफाइनरी है, लेट अस से वी हैव ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट रिफाइनरीज, वी हैव अ लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स लाइक रिलायंस, तो अगर उनको क्रूड ऑयल बेचना है इंडिया में तो वो प्राइसिंग कैसे डिटर्मिन होती है? गो अहेड रीड इट अप, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू टू डू। तो वो पढ़ने के बाद शायद दिस विल बिकम वेरी इंट्यूटिव फॉर यू। सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू यार, वो एक्चुअली तो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ही है वो, मतलब आप प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहां भी बढ़ते ही है। डी, ओपन मार्केट कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट लिटिल और नन ऑफ देयर ऑयल कैन मेंटेन स्टेबल डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस इवन व्हेन, तो ये फिर से वही फॉल्स है। हम तो बोल रहे हैं प्राइस बढ़ता है इंटरनेशनली तो डोमेस्टिकली भी बढ़ता ही है, वो चाहे किसी भी तरह की कंट्री हो आप। E, if international oil prices rise, domestic distributors of oil in open market countries will begin to import more oil than they export. We don't know. In fact, यहां भी तो प्राइस बढ़ेगा ही, तो वो क्यों एक्सपोर्ट करेंगे? This can be used as a reason to support why the price increases in the domestic market, है ना? If you don't do that, it can lead to shortages. But पर से वो करते हैं कि नहीं करते हैं ये हमें पता नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर करते होंगे तो दैट कैन बी यूज्ड एज अ रीजन टू सपोर्ट इट, support this behavior, but otherwise as a conclusion can't say. So the only true option here is option C. So that is the one that we'll go ahead and choose as our answer consequently. Okay, chaliye, here is your next question. Once again, hit pause, answer this and then come back. चलिए आइए, so let's go ahead and begin looking at this. From the passage above, it can be properly inferred that the effectiveness of the sustained massive use of pesticides can be extended by doing which of the following, assuming that each is a realistic possibility. तो ज्यादातर क्वेश्चन स्टेम्स में आपने देखा होगा एक वो चीज लिखी हुई इफ ट्रू, है ना? So this entire part is basically just another way of saying if true. So each one of these following if true can
ensure that the effectiveness of the sustained massive use of pesticides remains or can be extended. तो पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद में this question stem will also make more sense. So the sustained massive use of pesticides in farming has two effects that are especially pernicious. Pernicious basically इसका मतलब होता है harmful या फिर destructive. चले, हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव. तो क्या दो इफेक्ट्स हैं? तो किस चीज के? लेकिन पेस्टिसाइड के यूज के. लेकिन यूज भी कैसा? मैसिव, यानी कि आप लार्ज क्वांटिटीज में इस्तेमाल कर रहे हैं. और यूज कैसा? सस्टेन्ड, यानी कि आप लगातार फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं. तो जब आप ये दो चीजें करते हैं तो इसके दो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. क्या? फर्स्ट, इट ऑफन किल्स ऑफ द पेस्ट्स नेचुरल एनिमीज. तो देखो, पेस्टिसाइड से आप क्या कर रहे हैं? पेस्ट्स को मार रहे हैं. अब क्या पेस्टिसाइड इकलौती ऐसी चीज है जो उन्हें मारती है? नहीं, उनके कोई नेचुरल एनिमी भी तो होंगे, है ना? वो भी तो उनको मारते होंगे. तो ये बोलता है कि जो पेस्टिसाइड है ये उनके नेचुरल एनिमीज को भी मारते हैं. राइट? तो एक तरह से सोचो, एक कोई स्पीशीज है, वो दो रीजन से मर, वो अपने नेचुरल एनिमीज की वजह से मारी जा रही थी. उसके नेचुरल एनिमीज अगर खत्म हो गए तो उस स्पीशीज के थ्राइव करने की प्रोबेबिलिटी एक उस एंगल से देखें तो बढ़ती है. दूसरा क्या है? इट ऑफन अनइंटेंशनली गिव्स राइज टू इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट्स. तो आपने पेस्ट, अब आप चाहते तो नहीं थे ऐसा करना, लेकिन इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट्स आ जाते हैं जिन पे पेस्टिसाइड का असर होना बंद हो जाता है. क्यों ऐसा होता है? सिंस दोज इंसेक्ट्स दैट सर्वाइव अ पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड विल बी द वंस मोस्ट रेजिस्टेंट टू इट एंड दे आर द वंस लेफ्ट टू ब्रीड. तो वही वो जो आपको पता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अब इसमें क्या होगा कि यार 1000 पेस्ट्स थे, कीड़े थे, जिनमें से 10 में ये एबिलिटी थी कि वो उस पेस्टिसाइड को थोड़ा बहुत झेल जाए. तो जो नहीं झेल पाए वो 990 गए, ये 10 बचे. तो अब यही 10 जब ब्रीड करेंगे तो इनकी अगर वो एबिलिटी जेनेटिक हुई तो वो एबिलिटी इनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी होगी. तो ग्रेजुअली आपके पास ऐसे सेट ऑफ इंसेक्ट्स आ जाएंगे जिन पे उस पेस्टिसाइड का असर होना बंद हो जाएगा. सो ये भी है. तो अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पेस्टिसाइड्स का सस्टेन्ड मैसिव यूज बना रहे, यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो दो हार्मफुल इफेक्ट है ये मिनिमाइज कर पाए किसी तरीके से. तो इनमें से कौन सा है जो बताता है कि हम मिनिमाइज कर पा रहे हैं? लेट्स स्टार्ट. ए, यूजिंग ओनली केमिकली स्टेबल इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स आर टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स. तो अब यार हम तो बोल रहे हैं पेस्टिसाइड, अब वो किसी भी तरह के हो, केमिकली स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों के दोनों इफेक्ट तो अभी भी आएंगे ना. मान लो अनस्टेबल है केमिकली, यानी कि अब अनस्टेबल होने का मतलब क्या? वो जल्दी खराब हो जाता होगा, है ना? लेकिन उस केस में भी जब तक वो खराब नहीं हुआ, जब उसे यूज किया गया तो उसने पेस्ट और उसके साथ साथ नेचुरल एनिमीज भी मारे, और ये प्रोबेबिलिटी दोनों अभी भी एग्जिस्ट कर रही है. तो ये इनको काउंटर नहीं कर पा रहा. बी, पीरियोडिकली स्विचिंग द टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज्ड. अच्छा, अगर हम ये करेंगे तो ये जो सेकेंड इफेक्ट है हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. भाई एक वो जो 10 इंसेक्ट्स बचे हुए थे वो एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड को झेल गए, और हमने पेस्टिसाइड ही दूसरा यूज कर डाला, तो हो सकता है उससे मारे जाए. तो प्रोबेबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई. तो दिस डेफिनेटली reduces the second harmful effect, and because the harmful effect is reduced, आप ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे. अब इनको आगे चलते हैं. ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द क्वांटिटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज्ड, उसमें तो ये दोनों हार्मफुल इफेक्ट अभी भी रहेंगे ही रहेंगे. लीविंग अ फ्यू फील्ड्स फैलो एवरी ईयर, ये बेसिकली बोल रहा है फैलो, लीविंग समथिंग फैलो इज वहां पे फसल ना उगाए. हर साल कुछ खेत जो है उनमें फसल आप उगाए ही ना. अच्छा, अगर आप फसल ही नहीं उगा रहे तो आप पेस्टिसाइड उस जगह पे यूज ही नहीं कर रहे. उस जगह पे पेस्टिसाइड अगर यूज नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है? उस खेत में नहीं उगाई तो क्या हुआ? बाकी सारे खेतों में जहां उग रही है वहां तो आप ये कर ही रहे हैं ना. तो वहां पे तो ये प्रॉब्लम्स अभी भी आएंगी ही. देन ई, ब्रीडिंग हायर यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स. ये मतलब आप ऐसे क्रॉप्स उगाएं जो आपको ज्यादा उपज देते हो. कि आज आपको 100 किलो, लेट्स से ग्रेन कोई उगा रहे हैं हम, आज 100 किलो ग्रेन मिलता है, तो ऐसा उगाएं जिससे 110 किलो, 120 किलो, 130 किलो ग्रेन मिले. उसका पेस्टिसाइड से तो कोई लेना देना है ही नहीं.
तो आप इसे सेफली हटा सकते हैं. सो आई थिंक द ओनली वन वेयर वी नो दैट इट डेफिनेटली रिड्यूसेस द इल इफेक्ट्स फॉर श्योर इज बी. तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा. And with that, let me take you over to one more question. Here it is. Hit pause, answer, come back. शुरू करते हैं. Which of the following inferences is best supported by the statement made above? चलो statement देखें. Rural households have more purchasing power than do urban or suburban households at the same income level. तो भाई तीन तरह के घर हम बोल रहे हैं. एक है रूरल हाउसहोल्ड्स, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, कंट्री साइड में रहने वाले लोग, और फिर दूसरे जो सेट है वो हम बोल रहे हैं अर्बन और सबअर्बन हाउसहोल्ड्स. तो आपके पास है अर्बन हाउसहोल्ड्स, आपके पास है सबअर्बन हाउसहोल्ड्स. ठीक. अब इन तीनों की कोई परचेजिंग पावर है, कितना सामान या कितना महंगा सामान खरीद सकते हैं. तो भाई देखिए, ऐसा हो सकता है कि मेरे जेब में कुछ पैसे, आपकी जेब में भी कुछ पैसे. If both of us are in the market, then I am able to buy 10 kilos of rice. Maybe you have more money than I have and you are able to buy 20 kilos of rice. तो आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा हो गई ना. या मैं बाजार गया तो यार मैं तो 10 लाख रुपए की गाड़ी ही खरीद सकता हूं, मेरे पास उससे ज्यादा पैसे नहीं हैं, जबकि आप 20 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर मुझसे ज्यादा हो गई. तो यहां पे हमें क्या बताया जा रहा है कि रूरल हाउसहोल्ड्स हैव मोर परचेजिंग पावर देन ईदर अर्बन और सबअर्बन हाउसहोल्ड्स. इन दोनों से ज्यादा परचेजिंग पावर किसकी? रूरल हाउसहोल्ड की. ऐसा क्यों है? Some of the income urban and suburban households use for food and shelter can be used by rural households for other needs. अब देखो, इसमें एक चीज हमने कांस्टेंट रखी हुई है, सेम इनकम लेवल, यानी कि लेट अस कीप द इनकम लेवल एट से 10K. भाई ये भी 10,000 कमा रहा है, ये भी 10,000, ये भी 10,000. इसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है. क्यों? क्योंकि अर्बन और सबअर्बन वालों को खाने और शेल्टर यानी कि रहने के लिए रूरल वाले के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है. तो भाई लेटस से अर्बन वाले को खाने और शेल्टर पे आपका खर्च करना पड़ता था 6,000, इसको खर्च करना पड़ता था 5,000, इसको खर्च करना पड़ता है 3,000. सॉरी, इसको खर्च करना पड़ रहा है 3,000. तो अब देखो बाकी कितना बचा इसके पास. 6,000 खर्च हो गया तो कितना बचा? 4. तो ये 4,000 खर्च करेगा. इसके पास है 5,000 खर्च करने को, इसके पास है 7,000 खर्च करने को. राइट. तो परचेजिंग पावर इसलिए ज्यादा हो गई. तो अब देखते हैं आइए. ए, द एवरेज रूरल हाउसहोल्ड इंक्लूड्स मोर पीपल देन डज द एवरेज अर्बन और सबअर्बन हाउसहोल्ड. वी डोंट नो. परिवार में कितने लोग हैं, कम के ज्यादा, वो फैमिली साइज के बारे में कोई कमेंट इस इंफॉर्मेशन से, इस स्टेटमेंट से हम नहीं निकाल सकते. बी, रूरल हाउसहोल्ड्स हैव लोअर फूड एंड हाउसिंग कॉस्ट्स देन डू ईदर अर्बन और सबअर्बन हाउसहोल्ड्स. ट्रू. मतलब ये अगर इनका ज्यादा है तो उससे ऑब्वियसली द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज रूरल हाउसहोल्ड्स का कम है. सो दैट्स ट्रू. सी, सबअर्बन हाउसहोल्ड्स जनरली हैव मोर परचेजिंग पावर देन डू ईदर रूरल और अर्बन हाउसहोल्ड्स. फॉल्स. क्योंकि हमें पक्का पता है सबअर्बन की परचेजिंग पावर रूरल वाले से कम होती है. डी, द मीडियन इनकम, या फिर और थोड़ा निट पिक करूं तो फॉल्स नहीं तो कांट से बोल देंगे, क्योंकि यहां पे हमने एक अजम्पशन लिया सेम इनकम लेवल, वो अजम्पशन है रिपीटेड नहीं है. So maybe their income levels are higher and that is why उस केस में कान से. But then D, the median income of urban and suburban households is generally higher than that of rural households. We don't know. इस डेटा के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादा है. हो सकता है, वो हो सकता है ऑन एन एवरेज ज्यादा कमाते हो, लेकिन यहाँ पे तो हम वैसे भी ये फैक्टर यूज कर रहे हैं ना. तो इस बेसिस पे क्या मैं बोल सकता हूँ अर्बन में ज्यादा होती है कमाई? नहीं बोल सकते यार. E, all three types of households spend more of their income on food and housing than on all other purchases combined. कांट से हमें नहीं पता भाई. हो सकता है ये ट्रू हो सकता है ना हो, है ना. मतलब अब अर्बन हाउसहोल्ड में दिख रहा है हमें कि अच्छा ये 10 में से 6,000 फूड एंड शेल्टर पे लगा रहे हैं. ये नंबर तो आई हैव जस्ट टेकन इट आउट ऑफ हैट, रैंडम है ना. ये नंबर 6, 5, 3 ना होकर के 2, 1 और 500 भी तो हो सकता था. तो हमें नहीं पता यार. हो सकता हो सकता है ना हो. तो ये भी हटा दो. सो द ओनली वन विच इज ट्रू इज बी. सो दैट इज द वन दैट्स गोइंग टू बी योर
answer here. So that's where we'll stop today. If you need to reach out to me after this session, I'd be really glad to hear from you. This is my Telegram group. You can scan this QR code to access the group directly, or you can search for the group by using this name. Don't forget the underscores. It's a public group, so you can, of course, use this and reach me. And before I sign out, here is something that I wanted to leave you with. Find a way, not an excuse. हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छे स्कोर्स लाने हैं, हमें अमेजिंग करियर बनाना है. अब हम या तो एक्सक्यूजेस ढूंढते रहे कि यार मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जिंदगी में ये है, मेरी जिंदगी में वो है, या फिर हम सोचे अच्छा यार अब देखो जिंदगी में जो है चैलेंजेस वो हैं, ऑब्स्टेकल्स जो है सो हैं, डिस्पाइट दोज हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड. सो फाइंड अ वे and never come up with excuses, never argue for your limitations. If you do that, I'm sure you are going to do amazingly well on this career journey of yours. And with that thought, I'll sign off and I'll see you in the next one. Take care and have a great day ahead.